ایک دفعہ کا ذکر ہے، پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام بھنورپور تھا۔ یہ گاؤں سرسبز کھیتوں، گنگناتی ندیوں اور صاف آسمان کی خوبصورتی سے بھرپور تھا، لیکن اس کے باسی اکثر سخت دل اور طنز کرنے والے تھے۔ یہاں عزت صرف انہیں ملتی تھی جن کے پاس دولت اور رشتہ داری ہوتی۔ غریب کو یہاں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عاصم تھا۔ عاصم کے والد لکڑیاں کاٹ کر اور اوزار رندھ کر روزی کماتے، مگر آمدنی اتنی نہ تھی کہ پیٹ بھر سکے۔ ماں سلائی کر کے کچھ پیسے جوڑتی، مگر گھر کا چولہا اکثر بجھا رہتا۔ کچے مکان کے اندر غربت کا اندھیرا تھا، لیکن ماں کے چہرے پر صبر کا نور۔ عاصم بچپن سے ہی خاموش اور خواب دیکھنے والا تھا۔ اکثر گاؤں کے کنارے کھڑا ہو کر آسمان کو دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا، اے اللہ، ایک دن میری زندگی بھی بدل جائے، ایک دن یہ لوگ مجھے ذلیل نہ کریں بلکہ عزت دیں۔ لیکن بھنورپور میں خواب دیکھنے والوں کا ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا۔ اگر وہ کسی سے کہتا کہ وہ بڑا آدمی بنے گا تو سب ہنس پڑتے۔ گاؤں کے چوک پر بیٹھے بزرگ اکثر کہتے، یہ لڑکا کسی کام کا نہیں، اس کے نصیب میں ذلت ہے، نہ یہ کھیت سنبھال سکتا ہے نہ مزدوری، یہ تو نکما ہے نکما۔ نوجوان اس پر قہقہے لگاتے، یہ بادشاہی کے خواب دیکھتا ہے اور پہننے کو جوتے تک نہیں۔ اور چھوٹے بچے تو اس کا پیچھا کرتے اور آوازیں کستے، ہٹو ہٹو، ہمارا نکما بادشاہ آ رہا ہے۔ عاصم چپ رہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترتے مگر زبان خاموش رہتی۔ دل کے کسی کونے میں امید کی روشنی ابھی بھی زندہ تھی، مگر طنز کے پتھر اس روشنی کو بار بار بجھا دیتے۔ ایک دن گاؤں میں شادی تھی۔ پورے گاؤں کے لوگ بلائے گئے۔ عاصم نے پرانے کپڑوں کو دھو کر پہنا اور ماں کے ساتھ وہاں پہنچا، لیکن دروازے پر کھڑے دربان نے ہاتھ روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ بارات ہے، تماشا نہیں۔ تمہارے جیسے لوگ صرف کام کرنے آتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ یہ الفاظ عاصم کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ ارد گرد کے لوگ ہنسنے لگے۔ کوئی بولا، ہاں ہاں، دیکھو تو نکمنا بادشاہ بارات کھانے آیا ہے۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے پلٹ آئی۔ راستے بھر عاصم کچھ نہ بولا۔ اس رات وہ گاؤں کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہ بھری، اے اللہ، کیا میری قسمت میں واقعی ذلت لکھی ہے؟ کیا میں ہمیشہ ان کے تانوں کا نشانہ بنوں گا؟ اسی وقت ماں آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، لوگ جتنا چاہیں ہنسی، مگر رب سب دیکھ رہا ہے۔ رب کی عدالت خاموش ہے مگر اندھی نہیں۔ ایک دن یہی لوگ شرمندہ ہوں گے۔ چند دن بعد بازار میں عاصم کی سب سے بڑی رسوائی ہوئی۔ اس کا پرانا دوست حامد، جو کبھی بچپن کا ساتھی تھا، اب رئیس زادے کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس نے سب کے سامنے عاصم کو دیکھ کر قہقہا لگایا اور کہا، او عاصم، اب بھی بادشاہی کے خواب دیکھتا ہے؟ کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تیرا نصیب تو تنکے سے بھی ہلکا ہے۔ بازار میں لوگ ہنسنے لگے، تالیاں بجنے لگیں۔ کوئی کہتا، یہ خواب دیکھنے والا پاگل ہے، کوئی کہتا، قسمت اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ عاصم کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں چھوپ جائے، مگر اس نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، یاد رکھنا، نصیب انسان کے تانوں سے نہیں بنتا، رب کے فیصلوں سے بنتا ہے۔ لوگوں نے اس پر اور بھی زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اسی رات عاصم جھونپڑی میں آیا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کہا، اماں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ ہر گلی، ہر دروازہ، ہر محفل میرے لیے ذلت کا اکھاڑا ہے۔ مجھے جانا ہوگا کہیں دور۔ شاید میرے رب نے میری قسمت کسی اور جگہ رکھی ہو۔ ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جا بیٹا، جا، لیکن یاد رکھنا تو اکیلا نہیں۔ میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ رب تیرے قدموں کے نیچے روشنی بچھائے گا۔ اگلی صبح عاصم نے ایک پرانا سا تھیلا اٹھایا جس میں 2 پرانے کپڑے اور ایک قرآن شریف تھا۔ اس نے ماں کے قدم چومے اور گاؤں سے نکلنے لگا۔ پیچھے گاؤں والے جمع ہو گئے۔ ایک لڑکی نے قہقہا لگایا اور آواز دی، لو دیکھو، ہمارا نکما بادشاہ دنیا فتح کرنے جا رہا ہے۔
सब ने तालियां बजाईं, कहे लगाए, मगर आसिम के कदम नहीं रुके। इसका सफर शुरू हो चुका था, वो सफर जिसका अंजाम वो नहीं जानता था, मगर यकीन रखता था कि रब ने अगर धक्के दिए हैं तो एक दिन इज्जत भी देगा। वो गांव के रास्ते से निकलकर कच्चे रस्तों पर चलता रहा। गर्द उड़ती सूरज आग बरसाता, मगर उसके कदम थमते ना थे। इसके दिल में एक अज़्म था कि अगर गांव में इज्जत नहीं मिली तो शायद किसी और जमीन पर उसका रब उसके लिए बेहतर फैसला करेगा। 2 दिन तक इसने नदी के पानी से प्यास बुझाई, जंगल के फल खाए और दरख्तों के नीचे सोया। तीसरी सुबह जब उसकी आंख खोली तो सामने एक छोटा सा कस्बा था। ऊंची इमारतें नहीं थीं, मगर गांव की निस्बत जरा ज्यादा रौनक थी। आसिम ने दिल ही दिल में कहा, यही जगह शायद मेरी नई जिंदगी का आगाज हो। कस्बे में दाखिल होते ही इसने मजदूरी ढूंढी। एक दुकानदार ने कहा, सामान उठा सकते हो? मजदूरी मिल जाएगी, मगर खाने पीने का खुद बंदोबस्त करना होगा। आसिम ने फौरन हां कर दी। सारा दिन वो बोरियों और थैलों का बोझ उठाता रहा। शाम को जिस्म पसीने से शराबूर और कंधे जख्मों से भरे हुए थे, मगर जेब में महज चंद सके। इस रात इसने वो सके रोटी और दाल पर खर्च किए और मस्जिद के एक कोने में लेट गया। कुछ दिन यही मामूल रहा। वो दिन भर मजदूरी करता और रात को मस्जिद में सोता। लेकिन कस्बे के लोग भी कम जालिम ना थे। मजदूरों के दरमियान भी इसका मजाक बनता। कोई कहता, ये वही है जो ख्वाब देखने आया है, देखो आज भी सड़क पर सो रहा है। कोई कहकहा लगाकर कहता, इसे बादशाह बनना था ना, यहां तो बोरियों के नीचे दब गया है। आसिम के दिल पर हर तंज तीर बनकर लगता, मगर वो खामोश रहता। मां की बातें याद आती, रब खामोश है मगर अंधा नहीं। एक दिन कस्बे में मेला लगा। लोग खुशी खुशी वहां जाने लगे। आसिम भी चुपके से दरवाजे पर जा खड़ा हुआ कि शायद अंदर झांक सके। लेकिन दरबान ने इसे धक्का देकर कहा, यह जगह तुम्हारे जैसे गरीब मजदूरों के लिए नहीं, चल हट वरना मार खाएगा। लोग हंसने लगे। किसी ने तालियां बजाईं और कहा, हमारा निकम्मा बादशाह फिर आ गया है। आसिम ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लें और पलट गया। इस रात इसने मस्जिद में आंखों के आंसुओं से वुजू किया और रब के सामने सजदे में गिरकर कहा, ए अल्लाह, मैं सबके लिए तमाशा बन चुका हूं। आ तो मुझे बर्दाश्त की ताकत दे, आ मेरी किस्मत का रास्ता खोल दे। दिन गुजरते गए। मजदूरी से जिस्म कमजोर होने लगा। कभी काम मिलता कभी नहीं। भूख के दिन भी आ गए। एक बार तो 3 दिन लगातार उसके पेट में कुछ ना गया। वो बस पानी पीकर दिन गुजार देता। चौथे दिन वो एक हलवाई की दुकान पर जा बैठा। खुशबू से दिल तड़पने लगा। हलवाई ने इसे देखा और तंजिया कहा, काम करता नहीं, खाने को नजर रखता है, जा भाई यहां से दफा हो जा। आसिम ने कुछ न कहा। वो थके कदमों से वहां से निकल गया। लोगों की बातें इसका पीछा करती रही। एक दिन मजदूरी के दौरान इससे एक बोरी फिसल गई और टूटकर अनाज जमीन पर बिखर गया। दुकानदार ने सबके सामने इस पर चीखते हुए कहा, हराम खुर, यह है तेरा काम, जो कमाता है वो भी जाय कर देता है, निकल जा मेरी दुकान से। लोग जमा हो गए। कुछ ने कहा, यह तो नहुसत है, जहां जाता है नुकसान करता है। कोई कहता, यह निकम्मा कभी कुछ नहीं बन सकता। आसिम का दिल लहूलहान हो गया। वो चुपचाप वहां से निकल गया और नदी किनारे जाकर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कह रहा था, क्या वाकई में इतना बेकार हूं? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? लेकिन फिर उसके दिल में एक आवाज उठी, यकीन रखो, अगर रब ने जिल्लत दी है तो इज्जत भी देगा। अगर अभी धक्के खा रहे हो तो यह भी इसका इम्तिहान है। वो दिन आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों और महीनों में बदल गए। कस्बे के लोग इसे जानने लगे, मगर इज्जत नहीं दी। आसिम अभी भी मजदूर ही था और अब भी मस्जिद के सह में सोता था। वो मेहनत करता रहा, मगर कामयाबी अभी भी इसके करीब ना आई थी। यहां तक कि एक दिन कस्बे में कुछ लोग आए और मजदूरों से कहा कि एक बड़ा काफिला शहर जा रहा है, हमें कुछ मजदूर चाहिए। आसिम भी उनमें शामिल हो गया। वो काफिले के साथ शहर की तरफ चल पड़ा, वो शहर जहां इसकी जिंदगी का अगला बाब लिखा जाना था।
वो काफिला जिसके साथ आसिम मजदूरी करता हुआ कस्बे से निकला था, कई दिनों के सफर के बाद एक बड़े शहर में दाखिल हुआ। ये शहर नूर आबाद कहलाता था। ऊंची ऊंची इमारतें, गहमागहमी से भरी गलियां और बाजार, हर तरफ नई जिंदगी का शोर था। आसिम थका हुआ था मगर दिल में सोच रहा था, शायद यही वो जगह है जहां मेरी तकदीर का अगला बाब लिखा जाएगा। काफिले के लोग मजदूरी खत्म करके अपने अपने रास्ते चले गए। आसिम के पास कुछ सके आए मगर रहने की जगह ना थी। इसने मस्जिद का सहारा लिया। दिन को वो नौकरी की तलाश करता, रात को मस्जिद में सो जाता। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन एक किताबों की दुकान पर नौकरी का इश्तिहार देखा। आसिम फौरन पहुंचा और मालिक से कहा, मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, अगर मौका दें तो ये काम कर लूंगा। मालिक ने पहले तंजिया नजर डाली, फिर कहा, तनख्वाह कम होगी, सफाई भी करनी होगी। आसिम ने फौरन हामी भर ली। यूं वो दुकान पर काम करने लगा। वो किताबों को तरतीब देता, गर्द झाड़ता और जब मौका मिलता तो खुद भी पढ़ता। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में इल्म का शौक और बढ़ने लगा। दुकानदार ने भी इसकी लगन देखकर इसे पढ़ने की इजाजत दे दी। ये आसिम की जिंदगी की पहली छोटी सी रोशनी थी। अब वो बर्तनों के धक्के नहीं खा रहा था, न ही बाजार में जलील हो रहा था। लोग इसे इज्जत से किताबों वाला लड़का कहने लगे। लेकिन असल तब्दीली अभी आना बाकी थी। कुछ महीने बाद शहर में एक तालीमी नुमाइश रखी गई। दुकानदार ने आसिम को भी वहां भेजा ताकि वो किताबों का स्टॉल संभाले। नुमाइश में बड़े बड़े आलम, दानिश्वर और शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग आए। आसिम ने अदब और सलीके से सबको खुश आमदीद कहा। किसी ने इसकी गुफ्तगू सुनी तो हैरान रह गया। एक बुजुर्ग आलम उसके करीब आए और बोले, बेटा, तुमने कहां से पढ़ाई की है? तुम्हारी बातों में इल्म और आजिज़ी झलकती है। आसिम ने शर्माते हुए कहा, मैंने बस उन्हीं किताबों से सीखा है हजरत, असल इल्म देने वाला रब है। बुजुर्ग ने इसकी हिम्मत और सच्चाई को सराहा। कुछ दिन बाद उसी बुजुर्ग ने इसे अपने इदारे में बुलाया और कहा, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल से मुखलिस हों। तुम यहां आओ, बच्चों को पढ़ाओ, उनका मुस्तकबिल संवारो। ये वो लम्हा था जिसने आसिम की जिंदगी का रुख बदल दिया। अब वो सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा था बल्कि उस्ताद बन गया था। इसकी मेहनत, सब्र और दुआओं का फल मिल रहा था। सालों के सब्र और धक्कों के बाद आसिम के नसीब का दरवाजा खोल गया। इसकी तालीम और इखलास ने इसे जल्द ही इदारे का मोतमिद बना दिया। फिर वही इदारा इसके नाम से जाना जाने लगा। पूरे शहर में लोग कहते, ये वही आसिम है जिसे कभी लोग निकम्मा कहते थे। आज वो दूसरों की जिंदगी बदल रहा है। कुछ अरसे बाद हुकूमत ने इसे बुलाया और फलाही कामों पर अवार्ड दिया। इसका नाम अखबारात में आया। शहर के बच्चे इसे अपना हीरो कहने लगे। फिर वो दिन आया जब आसिम अपने गांव वापस गया, वही भनवरपुर जहां कभी लोग इस पर कहकहे लगाते थे। आज गांव के चौक पर लोग इसका इस्तकबाल करने खड़े थे। बुजुर्ग जो कभी ताने देते थे, शर्मिंदा आंखों से झक गए। वो लड़की जिसने कभी हंस कर कहा था वो निकम्मा बादशाह जा रहा है, आज इसके रास्ते में फूल बिछा रही थी। आसिम ने सबको देखा मगर दिल में गुरूर ना आया। इसने बस इतना कहा, जिन लोगों ने मुझे धुतकारा उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। अगर ये धक्के ना मिलते तो मैं आज अपने रब के करीब ना होता। किस्मत इंसान के हाथ में नहीं, वो रब के हाथ में है। कभी किसी के नसीब पर हंसो नहीं। जिसे तुम आज निकम्मा कहते हो, कल वही तुम्हारी दुआओं का सहारा बन सकता है। रब देर करता है, अंधेर नहीं करता। इसके फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं, बस सब्र और यकीन चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी ये सीखा कि नसीब इंसान के तानों से नहीं बल्कि रब के फैसलों से बनता है, तो हमारे चैनल इकूज ऑफ विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर कहानी में होता है दर्द, दुआ और नसीहत का चिराग। मिलेंगे एक और सबक आमोज किस्से के साथ। अल्लाह हाफिज।